برمنگھم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر ریلیز یاسین ملک انڈین کونسلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرے میں کشمیری کمیونٹی کے ساتھ ساتھ انگلش کمیونٹی سمیت دیگر اقوام کے افراد نے بھی شرکت کی۔ احتجاجی شرکا انڈین حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے۔ یاسین ملک سمیت شبیر شاہ اور دیگر اسیران کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر شرکا نے انڈین مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑھتی جارحیت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید نعرے بازی اور عالمی برادری کی طرف سے مجرمانہ خاموشی کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس موقع پر مختلف مقررین نے انڈین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حریت رہنماؤں کو طویل قید بند کے مذمت کرتے ہوئے کہا، عالمی برادری فوری طور پر اس کا نوٹس لے۔ یاسین ملک کی عمر قید جو غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، اس کو رہا کرنے کے بجائے پھانسی کی سزا میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو نوٹس لیتے ہوئے اس اقدام کو روکا جائے اور تمام اسیران کو فوری رہا کروایا جائے۔ کشمیری بات فریڈم، کشمیری بات فریڈم، اسٹاپ کلنگ ان کشمیر، اسٹاپ کلنگ ان کشمیر، اسٹاپ بمبنگ 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 ان کشمیر۔ وی وانٹ فریڈم، 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 وی وانٹ فریڈم۔ کشمیری وار فریڈم، کشمیری وار فریڈم، کشمیری وار فریڈم۔ للیت للیت یاسین ملک، للیت للیت یاسین ملک، للیت للیت یاسین ملک۔ Go back, go back. Killer forces go back. Go back, go back. Killer forces go back. Go back, go back. Killer forces go back. Indian forces go back. Indian forces go back. Indian forces go back. Butcher forces go back. Butcher forces go back. Modi forces go back. Modi forces go back. Fascist forces go back. Fascist forces go back. Fascist forces go back. We want freedom. 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 That's it. Okay, what's going on in Kashmir? It's an atrocity. It's been occupied by India and Pakistan for over like 80 odd years. More than that, like 1948. 38 years. 1947. 47. Anyways, the Indian government right now, historically right now they've shut down the internet. They've been killing people, families, children. They've been like disappearing like people, so like families won't ever hear from like people like Yassin Malik, for example, ever again. And this is a problem. When they're locked up, it's not good. And these are like the people that have been working hard for like Kashmiri freedom. So we need to like remember them and make sure that they're like visible and campaign for their release. And if we don't do that, then like fascism is going to creep in, and it's going to take all of us. Like we might be here in the UK, but if India is allowed to like become more and more fascist, then the UK government can follow suit, and then like America is going to do the same thing. Ultimately, like we need to have like an international perspective on things, and essentially protect each other, because like the powers that be aren't going to do that for us. Freedom in Kashmir is freedom here. We thank the Jammu Kashmir Awami Action Committee taking this case on publicly, and we did a demonstration outside Indian consulate in Birmingham in solidarity with the Action Committee, and we are warning India, do not do anything bad which will go against the nation. But we are not against the nation, but we are against the establishment
the government and the armies who are doing brutalities, atrocities, and we need to stop, and we need to free Yaseen Malik. Thank you. आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। पहले तो ये है कि ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 7,000 यकजहती के तौर पर जो कश्मीरी लीडर यासीन मलिक साहब को कल 28 जनवरी को जो इंडियन अदालत में फांसी की सजा पे अदालत गौर करेगी, हम इसके खिलाफ यहाँ पर भरपूर एहतजाज कर रहे हैं इंडियन हाई कमीशन बर्मिंघम के सामने। यासीन मलिक साहब का कसूर क्या है? यासीन मलिक का कसूर यह है कि वो कश्मीरियों की आज़ादी, कश्मीरी की खुद मुख्तारी, कश्मीरियों की खुशहाली के लिए पुरअमन पीसफुल तरीके से सियासी तौर पर जदोजहद कर रहे थे, और हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि कश्मीरी पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने वतन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और खुशहाली की बात करें। यह हिंदुस्तान की या काबिज़ीन की ये भूल है कि कश्मीरी लीडरों को, कश्मीरी एक्टिविस्टों को, कश्मीरी आज़ादी पसंदों को, कश्मीरी वतन परस्तों को जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे उनको कैदा बंद करके, उनको तशद्दुद करके, उनको फांसियां दे के कश्मीर की जो आज़ादी की बात है, कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है वो खत्म होगी। हिंदुस्तान ये क्यों भूल जाता है कि 1984 में शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट को फांसी की सजा दे के हिंदुस्तान ये समझा था कि मकबूल भट्ट की आवाज़ दब जाएगी। मकबूल भट्ट शहीद का जश्न खाकी अभी तक वापस नहीं किया, लेकिन मकबूल भट्ट तो आज हर कश्मीरी के सीने में है, हर कश्मीरी के दिल में है। इसी तरह यासीन मलिक, शबीर शाह, इसी तरह आसिया अंद्राबी और कासुम बख्तू, जहूर भट्ट, जितने भी हमारे कायदीन जेलों में हैं, सलाखों के पीछे हैं, हम सब कश्मीरी उनकी आवाज़ बनते हैं, हम सब कश्मीरी उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं। कश्मीरी जिंदा है, कश्मीर के वारिस जिंदा है। जब तक एक भी कश्मीरी जिंदा है, रियासत जम्मू कश्मीर का मसला खत्म नहीं होगा। तकसीम कश्मीर की तमाम साजिशों का डट कर मुकाबला करेंगे और भारतीय जेलों में यासीन मलिक समेत जितने कश्मीरी हैं उनके ऊपर भारत जितने मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन कश्मीरी अपने नाराए आज़ादी को नहीं छोड़ेंगे। यासीन मलिक को आज जो अजियत दी जा रही है इसकी तमाम ब्रिटिश कश्मीरी भरपूर मज़म्मत करते हैं और दुनिया भर के कश्मीरियों से अपील है जहाँ पर भी हो मसला कश्मीर को उठाएं, मसला कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करें और जितनी भी भारतीय जुल्म ज्यादतियाँ हो रही हैं इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लॉन्ग लिव जम्मू कश्मीर। आज बर्मिंघम के अंदर इंडियन कौंसलेट के बाहर आज कश्मीरी एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, चूँकि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडिया ने जो यासीन मलिक साहब की जो नाहक कैद है उसको सजाए मौत में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं उनको आवाज बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के रूल की नफी है। और इसी के साथ साथ अगर ये खिलौना खेल इंडिया ने खेला तो मैं समझता हूँ कश्मीर में तहरीक आज़ादी को मजीद तक़वियत मिलेगी और लोग एक दफा फिर उठ खड़े होंगे और एशिया का जो अमन है वो तबाह बर्बाद होकर रख जाएगा। और मैं ये समझता हूँ इसमें हुकूमत पाकिस्तान की भी नाकामी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों का वकील है और अपनी वकालत करने में वो नाकाम हो चुके हैं। उनको जागना होगा, उनको अपना किरदार अदा करना होगा, वरना कश्मीरियों को ये हक खुद लेके खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। और ये जो मसला है कश्मीर का इसको खुद हल करना होगा। पूरी दुनिया के अंदर मैं कश्मीरियों से अपील करता हूँ कि अपने लीडर यासीन मलिक के लिए, जो कि एक पूरी कश्मीरी कौम का लीडर है, उसके लिए बाहर निकले, आवाज बुलंद करे, प्रोटेस्ट करे, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से राब्ता करे और इसको अपना रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा करे और ये साबित करे कि हम कश्मीरियों के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कश्मीर आजाद नहीं हो जाता ये तहरीक आजादी इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी। आज यहाँ बर्मिंघम में इंडियन कौंसलेट के बाहर यहाँ कश्मीरी बड़ी तादाद में इस खराब मौसम के बावजूद यहाँ जमा हुए हैं। आज हमारा ये मुतालबा है न सिर्फ हिंदुस्तानी हुकूमत से कि वो होश के नाखन ले, बल्कि हम दुनिया की अक़वाम से ये मुतालबा करते हैं कि वो भी होश के नाखन लें और हिंदुस्तान में ये जो गैर इंसानी और गैर जो बैन अवी कानून की जिस तरीके से ये खिलाफवर्जी कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसको बंद करवाया जाए। अगर यासीन मलिक को
को इस वक्त किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया गया तो ये न सिर्फ पूरे कश्मीर को आग में धकेल सकता बल्कि ये पूरे खित्ते के अमन को और अमन आलम को भी तबाह करने का मुतरादिफ होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि यासीन मलिक का मसला ये एक बैन अल-क़वामी मसला है और यासीन मलिक एक कौम के हीरो हैं, एक कौम के रहनुमा हैं और वो अपनी कौमी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके साथ किसी भी तरह का ये गैर इंसानी सलूक है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ बर्मिंघम कौंसलेट के इंडियन कौंसलेट के बाहर इकट्ठे हुए हैं सॉलिडेरिटी के लिए और यासीन मलिक की रिहाई के लिए। यासीन मलिक को इंडियन कोर्ट ने ऑलरेडी 3-3, 4-4 उम्र कैद की सजाएं दी हुई हैं, लेकिन NIA ने उनको फांसी की सजा देने के लिए दरख्वास्त दी हुई है। कल उनकी इस केस का फैसला है। हम यहाँ दुनिया भर के तमाम मुल्कों से ये अपील करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बताने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है, ये जो किलर फोर्सेस और फाशिस्ट मोदी है, ये टेररिस्ट मोदी है, ये अपने अज़ाम को पूरा करने के लिए ये यासीन मलिक के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि इंडियन लॉ में या ये कहीं भी नहीं है, बल्कि दुनिया के लॉ में कहीं भी नहीं है कि जब एक दफ़ा आपको किसी उम्र भर की सज़ा हो जाए तो फिर उसको फांसी के लिए कन्वर्ट किया जाए। तो हम यहाँ पर सब इकट्ठे होकर सिर्फ यासीन मलिक की रिहाई के लिए नहीं बल्कि कश्मीर के जितने भी और पॉलिटिकल प्रिजनर वहाँ इकट्ठे हैं उन सब की रिहाई के लिए यहाँ डिमांड कर रहे हैं, यहाँ एहतियात कर रहे हैं कि फाशिस्ट गवर्नमेंट इंडियन फोर्सेस अपने अक्ल के नाहन लें और याद रखें कि 84 में हमारे काज जनाब मकबूल भट्ट शहीद को आपने तिहाड़ जेल में फांसी पे फंदे पे लटकाया और उनको उस तिहाड़ जेल में ही दफन किया। लेकिन आज तक आप ये समझते थे कि उनका नजरिया मकबूल भट्ट को फांसी पर लटकाने से खत्म हो जाएगा, लेकिन हर कश्मीर के हर घर में, हर गली कूचे में, हर जगह पे मकबूल भट्ट पैदा हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपने ये गलती दोबारा की, ये तारीख को दोबारा दोहराने की कोशिश की, यासीन मलिक को दोबारा इस तरह की किसी भी इक़दाम में लेके गए, उन्हें फांसी की तरफ लेके गए, तो हर घर से पहले एक मकबूल भट्ट निकला था तो अब 10 यासीन मलिक निकलेंगे और इंशाअल्लाह जो उनका मकसद है आज़ाद, खुद मुख्तार, खुशहाल कश्मीर, उसके पाया तकमील तक हर कश्मीरी अपनी जान का नजराना पेश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए कि यासीन मलिक को जस्टिस दिलाने के लिए आज हम हिंदुस्तान की फाशिस्ट हुकूमत पर ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने मकबूल भट्ट शहीद को तख्तादार पर लटकाया और तुम यासीन मलिक को भी तख्तादार पर लटका सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि ना ही तो मकबूल भट्ट की आवाज को तुम कत्ल कर सके हो और ना ही यासीन मलिक की आवाज को तुम दबा सकोगे। तुम एक यासीन मलिक को फांसी के तख्ते पर लटकाओगे और हजारों यासीन मलिक रियासत जम्मू कश्मीर की इबादत के लिए, उसके तशक्कुस के लिए उठ खड़े होंगे।